working in statutory audit at Ernst& Young Gurgaon. I have previously worked at BDO India LLP in risk advisory. And apart from मेरे professional वाली चीजें, I love participating in ICI events. लोगों से मिलना अच्छा लगता है. And yeah, it's fun. That's why I'm here today. So थोड़ा okay, Prashant. Trishant. Hi everyone. So myself Sushant, a CA final student doing my articleship in Mazars statutory audit. ठीक है, उसके अलावा तो बहुत वही रौनक वाली बात, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बस बेहतरीन. बढ़िया. तो एंड क्लब के सेशन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. मेरे से पूछ रहा है. चारों से पूछ रहा हूँ. True pleasure. 3 हफ्ते पहले मैं व्यू कर रहा था इस सेशन को. आज मैं सेशन में हूँ. ग्रेट. सेशन कंडक्ट करने से ज्यादा सेशन में आने में मजा आ रहा है. कंडक्ट करने में बहुत प्रेशर रहता है. अब आयुष पे लो प्रेशर. बहुत ज़्यादा प्रेशर है भाई मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना. हाँ, तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि सेशन का टाइटल है नेटवर्किंग की पाठशाला, है ना? तो आखिर इम्पोर्टेंस क्या है नेटवर्किंग करने की? हमें क्यों नेटवर्किंग करनी चाहिए? राइट, ये जानना चाहूँगा तुम चारों से. उससे पहले कौन बोलेगा? जो बोलना चाहे उससे पहले बोल सकता है. रौनक तो ही बोल दो. मैं बोलूँ? हाँ. So the main benefit is meeting new people. ठीक है. The main benefit is meeting new people. You meet people from various streams. Like some people may be an articleship, some may be still pursuing their intermediate studies. And so you get exposure to different types of people working in different fields. Like I know Ria through conferences only, through Nikasa only. She is my friend in IDT. I know Satya, he's in transfer pricing. I have friends in stat, in direct tax, you know, in all fields, and also in M&A, like very niche fields as well. So you get to meet certain people जिनका exposure इतना different होता है, and you learn certain चीजें which are very unique to their field, which also helps you in some ways. So for example, अब मैं जब से events पे participate करना शुरू किया था, so every time I used to meet some new people, I used to send them LinkedIn requests, and that's the best like method. When you meet someone personally once and then you send them a request, your connection is deeper. Your connection is better than just another LinkedIn connection जिसको तुमने भेज दी थी request and उन्होंने accept कर लिया. Okay. So you're also added to WhatsApp groups अगर तुम conferences में participate करते हो. So those WhatsApp groups helps you connect with more people, and उनसे like if I say like intermediate वाले students को मैंने काफी देखा है. They ask कि हमने क्या करना है इवेंट्स में आके, हम तो ना कोई पेपर प्रेजेंट करेंगे ना हमें जो स्क्रीन पे चल रहा है ज्यादा कुछ समझ आना है. सो आई हर्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. और मुझे जैसे फील होता है कि इफ आई एज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट मैंने अगर किया होता तो आई वुड हैव मेट सर्टेन पीपल जो ऑलरेडी आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे थे जो आज हम कर रहे हैं. सो उनसे अगर मैं पूछ के उनसे बात कर सकता, आई वुड हैव लर्नड अ लॉट मोर अबाउट द फील्ड्स आई एम प्लानिंग टू गो इनटू बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू देम. So that is also another benefit जो मुझे लगता है इवेंट्स पे नेटवर्किंग ऐसे करने का फायदा बहुत है. करेक्ट भाई, करेक्ट. और मैं ऐसे बोलते रहूंगा जितने भी पॉइंट्स दिमाग में आते हैं. I don't have anything written. Ria, would you like to add anything to what Ronak said? Yeah, I totally agree with Ronak. So being a CA student, as because mostly of us are CA students here, so सबसे पहले तो हमारी articleship where we have to search करना होता, then it comes after qualification, right? So जब articleship ढूंढ रहे हो, then we need network, right? We need to connect with people. We need to know about their fields, about their experience, and first of all the referral, right? So how we'll get to know about the referral is only the network that we have right now. And after qualification also, if you think that, and after qualification, either you pursue a practice also. You know, whoever to you met, it's your prospective client. Just think that yes, he is your client in future, right? If you're meeting there the chairman, suppose for example I'm talking about, you're meeting the chairman, just think that he can bring out to you the clients that you are going to have if you are going to pursue your best practice in future. And if I talk about that, if you want to pursue your business, if you want to open your business, then they are your prospective customers, right? So that is why networking is important. That is I like to extend in what Ronak said. Over to you, Satya. See, I would like to give a complete different perspective. Firstly, I think network is like a soft power which we have. Just like if I refer to the COVID times, many people have lost their jobs due to this. A lot of uncertainty was there, but at the same time, many people were able to place themselves as well due to their so-called networks and the links they had. And
in this emerging world, now what's important is who knows you, and more importantly, who all knows you, means कौन कौन आप लोगों को जानते हैं, एंड वो किससे जानते हैं, लाइक आप क्या ऑफर कर सकते हो, लाइक आप में क्या खासियत है, वैसे तब लोग आपको जानने की ज्यादा कोशिश करेंगे. एंड सेकेंडली नेटवर्क की बात आती है तो आई पर्सनली फील एक बंदा जाके वन पर्सन गोइंग एंड मीटिंग 100 पीपल इज वेरी टफ, and 100 people coming to you and meeting is that something where you can network fast and make a lot of connections at a small period of time, and those things happen in such ICI events and other, and especially LinkedIn is also a great platform if we utilize it very correctly. Means I personally believe number of followers does not mean like एक अच्छा follower, एक अच्छा हमारा LinkedIn connect आपको दुनिया में एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट दे सकता है, बिकॉज देखो हमें यार एक ही अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है, लाइक है ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी एक बंदा ऐसे ढूंढो जो हमसे मतलब काफी अच्छा हो in every terms, or the people around you will make you definitely a great person, so try to be with the great people. That's what I want to say. एग्जैक्टली सत्य, आई टोटली एंड 3 साल बाद, एंड नॉट ओनली दिस, 3 years आफ्टर, जैसे आर्टिकलशिप की बात कर रहे हैं, जिनकी आर्टिकलशिप स्टार्ट भी हो गई, मींस हर जगह हर कोई तो रिटेन, मतलब एवरीवन हैज देयर ओन ऑप्शन, राइट, तो हर 3 साल बाद डेफिनेटली मार्केट ओपन होगा आपके लिए. 3 साल बाद फिर अगेन आप इसी में आपको मार्केट में आना पड़ेगा. तो मजा तब है कि आप जो रेफरेंसर को नहीं, अगर जो इंटरव्यूअर अगर उसी को जाना, तो बात ही अलग है. करेक्ट. सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर त्रिशांत. सो त्रिशांत, ना तुम कभी पेपर प्रेजेंटर रहे हो, रिया, सत्या, रौनक पेपर प्रेजेंटर रह चुके हैं, वॉलंटियर्स रह चुके हैं, राइट. सो तुम सारे के सारे ICI के इवेंट्स अटेंड करते हो, राइट. तो क्या मिलता है सारे तो नहीं, बट यार मोस्टली क्या मिलता है अटेंड करके? यार देख, मेरे साथ वो वाला सीन नहीं था जब मैंने ICI का पहले अटेंड किया था कि मुझे नेटवर्क बनाने. एक्चुअली 3 महीने पहले जब मैंने एग्जाम दिया, मई का एग्जाम दिया था, मुझे पता नहीं था नेटवर्क बनाने का कोई फायदा है या कुछ, ठीक है. तो बट एक चीज़ है कि 2 तरह के नेटवर्क होते हैं. जैसे एक तो यार वो नेटवर्क होते हैं जो हम लिंक्डइन पे बनाते हैं, ठीक है, सब बनाते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब जो भी लिंक्डइन ज्वाइन करता है वो देखता है सामने वाले के 500 कनेक्शन है, तो वो स्पैमिंग चालू कर देता है, धड़ हर महीने को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है. 2 दिन के बाद लिंक्डइन से नोटिफिकेशन आती है, यू आर नॉट एलिजिबल टू सेंड एनी कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है. तो ये बहुत बदल साथ होता है स्टार्टिंग. तो वो मेरे को लगता नहीं कि कनेक्शन किसी काम के, मेरे को पर्सनली लगता है. तो ICI के इवेंट अटेंड करके क्या हुआ, ऑल्दो मेरे को जानते होंगे, ठीक है, काफी लोगों से मैं जानता हूँ या मेरे को जानते हैं, नेटवर्क है. बट इसका ये बेनिफिट है कि वो पर्सनल लेवल के जो नेटवर्क है ना, वो तुम्हारे काम निकाल के दे सकते हैं. तुमको हेजिटेशन नहीं होती उनसे हेल्प मांगने में. लिंक्डइन पे किसी को रैंडमली बोलने में ना कि भाई मेरी रेफरेंस लगा दिया, वो तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल गैप आ जाता है. तुम उससे बोलते हो, रिप्लाई नहीं आता, तुम कुछ कर नहीं सकते. बट जहाँ पे पर्सनल कनेक्ट आता है ना, तो वहाँ पे तुम कह सकते हो, तुम उससे मिलके बोल सकते हो, तुम्हारे पास उसका फोन नंबर हो सकता है, तुम्हारे पास लिंक्डइन पे है, इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हो. तो वो जो कनेक्शन होता है ना, वो इससे ज्यादा अच्छा है जो लिंक्डइन वाला है. और बाकी रही कि ICI इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बात, तो उसका मेन पर्पस ये था कि बोरिंग लाइफ चलती है CA की, तो उससे ICI बचा लेता है. तो बट एक बात है, पार्टिसिपेंट लोग इसलिए नहीं करते कि सोचते हैं यार मोमेंटो मिलेगा, वॉलंटियर्स को मिल रहा है, अगर कुछ मिल रहा है तो पार्टिसिपेंट क्या करेगा. पेपर अब जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है, पेपर क्यों पेपर कर रहे हैं प्रेजेंट, ठीक है, जो वॉलंटियर कर रहा है ठीक है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे जाके. भाई वही तो खेल है, तुम कुछ नहीं कर रहे ना, तो तुम्हारे पास इतना एक्सेस टाइम मिल जाएगा, तुम वहाँ पे सबसे बात कर सकते हो. इफ यू आर वॉलंटियर या फिर पेपर प्रेजेंटर है, तब तो हम तो सिर्फ पूरे दिन उसी में बिजी रहेंगे. लेकिन अगर तुम अटेंड कर रहे हो, तब ज्यादा टाइम तो तुम्हारे पास है ना, सब पूरी कॉन्फ्रेंस सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए, राइट. मतलब मैंने 3 ICI के इवेंट एज अ वॉलंटियर अटेंड करे, एक इवेंट एज अ पार्टिसिपेंट अटेंड किया, फिर मैंने एक इवेंट अब अटेंड किया एज अ अटेंडी. तो मेरे को सबसे ज्यादा टाइम कब मिला, जब मैं अटेंडी था. सबसे ज्यादा मजे कब करे, जब मैं अटेंडी था. ये बेनिफिट रहता है. एग्जैक्टली. तो सत्य, रिया, रौनक. One point I'd like to add इसकी वाली चीज पे, what he said कि पर्सनली अगर तुम मेरे को जानता हो ना, मतलब द मोस्ट सबसे ज्यादा अहमियत मेरे लिए वो चीज रखती है. अगर मुझे कोई लिंक्डइन पे मुझे रोज आती होती है, हफ्ते में यू कैन से लाइक 4 दिन तो मुझे आती है कि हाय माय नेम इज दिस, ठीक है, आई एम कॉलेज ये मेरे रेज्यूमे रेफर कर दो. मुझे किसी को रेफर करने में कोई इशू नहीं है अगर कोई वैकेंसी होती है, FN होती है, HR एंड ऑल. बट द थिंग इज आई डू नॉट नो यू, आई डू नॉट नो हाउ गुड यू आर टेक्निकली, ठीक है, तुम पर्सन कैसे हो, आई डू नॉट नो दैट. बट अगर कोई, मैं किसी को फिजिकली मैं जानता हूँ, तो किसी को मिला हूँ एंड दे आस्क मी कि कर दे, तो मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ ये बंदा है, उसको मैं जानता हूँ, ही इज अ गुड गाय और अ गुड गर्ल, आई नीड टू मुझे जैसे फील होता है कि हाँ इनके लिए मैं कर सकता हूँ. क्योंकि इसमें एक और इशू है
ऐसा अगर like you need to understand it from a company's point of view as well, HR's point of view you can call it. See, अब HR's को अगर तुम कोई बंदा रेफर कर दो and that person does not turn out to be good, ठीक है, HR की जो भी क्राइटेरिया उस हिसाब से, it wastes the HR's time, it wastes the company's time, it wasted your time, okay, and ultimately it led to disappointment for the candidate जिसने जो रेफर हुआ था and जो सक्सेसफुली नहीं हो पाया. So उस चीज के अंदर अगर तुम्हें पहले ही पता होता है कि बंदा कौन है, then you can actually vouch for that person कि हाँ HR मैम मैं जानता हूँ कि ये बहुत अच्छा बंदा है, and that makes a difference. उससे उसकी भी चांस ऑफ सिलेक्शन हायर है, HR's का टाइम भी नहीं वेस्ट होता, कंपनीज का भी नहीं होता, तुम्हारा भी नहीं होता. So that benefits everyone. अगर किसी को पर्सनली जानते हो, देखिए ये मेरे साथ बहुत होता है ना एक्चुअली, मुझे थोड़ी सी झिझक होती है किसी रैंडम बंदे को रेफर करने में, सो आई जस्ट आस्क देम एक बारी कैन आई टॉक टू यू ऑन द फोन. तो लाइक वो चीजें भी वो करनी पड़ती है एक्स्ट्रा. उसकी जगह if I met someone at an event and उनसे बात हुई, I am much higher likely to refer them उस चीज के लिए या help them personally भी किसी भी तरह जो मैं कर सकता हूँ than किसी random stranger को ऑनलाइन. So अगर तुम purely from a transactional point of view देखो, like I'm not bringing emotions and friendships into this. जो तुम networking usually हमेशा कहते थे कि networking is for a purpose, for a like specific selfish जैसे अपनी career oriented purpose. उस पर्पस से नेटवर्किंग बहुत कमाल की चीज है. पर्सनली किसी को मिलो तो उसको छोड़ के हाँ आई कैन एलैबोरेट अ लॉट मोर ऑन की द पर्सनल एस्पेक्ट की किसी को जानते हो तो एक्चुअली बिकम फ्रेंड्स विद देम लाइक बियॉन्ड दे आर जस्ट प्रोफेशनल कि बंदा प्रोफेशनली ये करता है और यहाँ पे काम करती है इस फील्ड के अंदर है, उससे तुम परे होके तुम उसको एक्चुअली जानते हो, तो दैट एक्चुअली गिव्स यू फ्रेंड्स फॉर लाइफ. And in addition to that, in addition to that, one more thing I would like to highlight. Usually the vacancies don't come out. Like what exactly happens when we are aware of the vacancies, what exactly we do is that we share with the people who are in requirement in our circle. And what I personally prefer is that directly referring to the direct team rather than HR. So वो depend करता है कि आपका level of connect कितना है, because until and unless we don't meet a person ना, वो अपना confidence आता नहीं, and why we should take the onus. Correct. So that's the thing also we need to consider. एक बात और है सत्य इसमें कि जैसे क्या होता है ना, लेट अस अज्यूम मेरे पास किसी का रेफरेंस आया और मैंने उसका रेफर दे दिया, अल्टीमेटली वो कैंडिडेट ने जॉब ले ली, सब कुछ सही है, पर उसने छोड़ दिया, कोई भी रीजन हो सकता है. तो ऐसे अगर 3-4 टर्न आउट लगातार मेरे रेफरल की वजह से आ जाते हैं ना, तो एचआर अल्टीमेटली सोचते हैं कि यार ये बंदा तो जो भी लाता है वो टर्न आउट मार देता है, वो तो चला जाएगा, तो वो चीज़ खराब हो जाती है. जब तुम किसी का रेफरेंस अगर तुम किसी पर्सनल लेवल पे भी लगवाते हो तो वो बंदा ये बोलता है छोड़ियो मत, मतलब पहले रिसर्च कर ले, छोड़ियो मत जॉब लेने के बाद, क्योंकि उससे क्या होता है नाम खराब होता है. अल्टीमेटली तुम्हें तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली जाना है ना 3 साल, अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हो, या फिर अगर तुम किसी परमानेंट एम्प्लॉय हो तो भी तुम्हें लॉन्ग टर्म सर्व करना है, तो वो तुम्हारी कनेक्ट खराब करता है एम्प्लॉय के अंदर. इसलिए कोई भी बंदा जल्दी से लिंक्डइन वालों को नहीं लगाता रहता अगर जानता नहीं हो. बट एक चीज है लाइक रेफरल बोनस होता है तो करते हैं, बट वो डिपेंड करता है, लाइक वो फिर HR के पास जाता है, फिर वो पर्सनल टीम के पास नहीं जाता, बिकॉज वहाँ पे पर्सनल स्टेक इन्वॉल्व होता है. लाइक आई वांट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, लाइक यार लाइक एज काफी लोग हैं तो कि करते बहुत हैं, बट वो इफेक्टिव वाला नहीं होता फिर, अगर उसके लक पे डिपेंड करता है फिर काफी ज्यादा. Exactly, guys. In addition to this, it's not like that we cannot connect with people on LinkedIn as well. We can connect with here as well, because there is a way to connect, right? If we are connecting just like as Ronak said कि हाँ हमने अपना resume भेजा and then we like कि refer कर दो, that is not the way actually. That is not the There is a way to connect with people on LinkedIn. First of all, if you are sending the request to someone, it is better to send a request, right? That is like we are sending a curated message for that person only. It should not be copy pasted. If you are just copy pasting the message and we are like, if you're connecting with me and you're writing hello sir, just feel that how does it feel, right? It should be a very curated message and for that person only. It should not be copy pasted. I receive so many messages daily and most of them are copy pasted. Like if you're connected with me, then you have to mention my firm. You are referring that company. That is not something of way to connect with people, right? So that is what I understand about connecting. And first of all, just curate your profile on LinkedIn and be active there as well, because that is how also people get to know. When I was not having network when I applied for my articleship. I was having zero connections, right? But I was having my LinkedIn with me, and I always active on LinkedIn. I post content there, and that's how people get to know me about that. Yes, what I can do and what are my qualities, right? So that's how people referred me, believing on my LinkedIn profile. So your LinkedIn profile is your CV first.
So just be active there, guys. That can give you so many things. I'm literally telling you, so many things, so many opportunities, so many people, and so many connections. And your dream firm as well, your dream job. Exactly, I agree with all of you. I think all of us got the answer of why we should connect with people and why we should do networking. Satya, I have a question for you. You have been a paper presenter in many conferences, right? एक पेपर प्रेजेंटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पेपर बनाना होता है, राइट? बहुत रिसर्च लगती है, उसके बाद फिर वीडियो बनानी होती है. फ़ायदा क्या होता है पेपर प्रेजेंट करने का कॉन्फ्रेंसेस के अंदर? See, it's मैं एक ना होलिस्टिक में बात करता हूँ. फर्स्टली आपने पूछा कि पेपर प्रेजेंटर कैसे बने, है ना? फिर उसके बाद फायदा क्या होता है. My video is there now, like I use. Yeah. See, firstly about research, like firstly my this paper presentation, everything started last year in September 11 when Ghaziabad conference was there in Kaushambi. That was my first presentation, and that was the day when I met Rashi and Devesh Aplani and all. And that day I went alone. I had no friends. I have not asked even any of my friends. I just went alone, and I was sitting in the first row with the judges and all. Like we are in suits, who knows like what we are. And the irony is, like one of the paper presenter thought that I was also a judge because I was noting everything, whatever they were saying. Because I was in the intent that okay, tomorrow I need to be there. Then what I have done is that I got to opportunity to interact with all the paper presenters. So I have interacted, and they have helped me to understand okay how the procedure is and what exactly they do, and I have connected with them. Especially, I would like to give the credit to Sai Charan, one of my friends, and Devesh as well, Plani as well. And later, in just 1 month, I got an opportunity and I have written a paper. And I always prefer the topics in which I have a command. That is, I am in transfer pricing and international tax. I always choose the topics which are related to related parties or international tax or transfer pricing. Because in that topic, I can speak for 5 minutes without preparing. And the voice comes from heart rather than just mugging it up. So after sending the content, when it gets finalized, and then the second procedure starts, that is PPT and all. So it's completely a different story, like the time management, etc., and how the slide should be. But the advantage I will say is that firstly, the confidence to develop, because this era now, if you are not able to showcase the knowledge you have, if you don't know how to present the concepts, then it's going to be very tough. Because in GT as well, we have weekly webinars of 1 hour where one individual or manager need to take. And this paper presentation helps you to evolve as an individual, to explain and to even develop your personal concepts as well. Like recently in coming conference, I would be talking about taxation of digital economy, where I will be discussing about equalization levy, significant economic presence, or may have heard, and pillar 1, pillar 2, the global consensus. So before this, last year I have started research, and it took me around 9 months to complete this particular research. And then I published a paper, and thankfully ICA Delhi have selected this topic. So it's a subsequent events which go on. So you need to start, and research is a great skill which you need to develop, because this has a huge potential in future. People will be definitely getting a huge edge if you have this. And secondly, the personal brand you are going to have, because conferences give you a leverage, like you are going to, as I said now, that 100 people will come to you and speak. In conference, if you are a paper presenter, I guess if 500 people are there, you are able to connect with all the 500 or 400 people over there. And they are going to come to you and speak. And then you are whenever there is, so the network, this is how the network develops. I think this paper presentation have helped me to get around more than many friends across India. So it's an entry mode. So once, and many people may think, यार मेरा पेपर सेलेक्ट नहीं हुआ, यार मैंने भेजा वैसा नहीं हुआ, यार वो गलत है. जिसका सेलेक्ट हुआ उससे बात करो, यार कैसे बनाया, उनका पेपर लो, उनका वीडियो लो, and अगली बार करते रहो. Because I think beginning is tough, but once you start, I think no one can stop. So शुरुआत करो बस, इम्पोर्टेंट है. जैसे मेरे अभी काफी दोस्त हैं जिन्होंने इस बार कर रहे हैं और पिछले गाजियाबाद गुड़गांव कॉन्फ्रेंस में किया, दे वर आल्सो विलिंग कि शुरुआत तो हो. एंड एक बार जैसे हमारे वन ऑफ द पार्टिसिपेंट विवेक हैं, उन्होंने शुरुआत की, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. उन्होंने तो लिमिट भी क्रॉस कर दिया शायद. just kidding, but it's good. It's all due to his everyone has their own potential. तो उसके हिसाब से ही होता है. एंड देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर हमारे पोटेंशियल पे कुछ किया जा रहा है तो हमें
एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज कहीं वो नहीं होता. Exactly. Satya. Riya, would you like to add anything to what Satya said? Because you have been also be a paper presenter in Ghaziabad branch, Ghaziabad conference site, And before Vijayawada branch as well. Vijayawada branch also, right? Yeah. So I get to know as I cleared my intermediate. Mhm. After the results, so I was searching for all these. First event was my debate competition I participated in, and after that I get to know through the about the conference. That was online conference in Vijayawada branch. We have to just be at home and then. So I will not consider it, but the experience was wonderful. First of all, I get to know that how to prepare the PPT. Yes, how we exactly have to present and how to prepare the research paper. So that helped me out in my Ghaziabad branch paper. That yes, this is the format that we have to prepare and how we have to prepare the PPT. And after hearing all the people and getting the feedback, the most important thing that we get to know through these participation is the feedback thing. That yes, what is something that is lacking in us? That is there a confidence? Is that something our deliberation, our PPT? So through this in Ghaziabad, I get to know that I have to maintain this in my PPT. So that is something I got as feedback, and I'm going to use it further in my presentations. So these events are literally very useful. The first benefit is networking, fun there, learning, and your overall development and about your personality. If you want to say, so there are two people in front of you, the one who can present themselves and the second one who cannot just, who have the knowledge, who is having more knowledge than you, but not able to present it, then there is no benefit of it, guys. There is no benefit of it all. You are able to be presentable. It is always said the lawyers are better than the people who's in tax. It is always said. And I've always heard this as well. So I always think what is better in lawyers? From us, we also study tax. We also study what is better. The only thing is presentation skills. They have better presentation skills than us. So it is very important. And to improve those presentation skills, it is very important to participate in these events. It is not that someone that you are going to learn everything at sitting at your home. No, guys, it is not going to happen at all. You have to get out. You have to get out of your comfort zone. That fear in your mind of facing the stage. You have to get out and to face that stage and speak in front of so many people and rock it. Yeah, This that's transition happens for lawyers because उनके यहाँ पे moot court sessions भी होते हैं उनके colleges वगैरह में. So Yeah, that that gives is. them a good exposure and a real life simulation of उनके साथ court में क्या क्या हो सकता है, क्या extreme grilling हो सकती है. Whereas वही similar चीज आप you can actually if you present a paper, if you get to present a paper, that will be amazing because आपको stage पे जाके करने का chance मिलेगा. I personally मैंने अभी last अभी गाजियाबाद में जब करा है, I had not like been in front of an audience for about 8 years now. Last मैंने कोई भी टाइप की पब्लिक स्पीकिंग करी थी 7th 8th क्लास में. आई हैव नॉट बीन ऑन अ स्टेज बहुत देर से, एंड इतनी देर बाद जैसे स्टेज पे आके थोड़ा सा जैसे आई ऑब्वियसली लाइक हैड कोल्ड फीट, थोड़ी सी शिवरिंग सी फील होती थी, बट यू नो नाउ आई नो कि हाँ मुझे अब अगले वाले के अंदर दिल्ली वाले में मुझे बेटर क्या करना है. सो दैट एक्चुअली हेल्प्स यू इन रियल लाइफ एज वेल जब तुम बाद में कुछ प्रेजेंट करना होगा कभी भी, बिकॉज इवेंचुअली एवरीथिंग इन लाइफ इज अ सेल्स पिच. मुझे ये समझ आया जैसे like everybody has to be a salesman. If you want to get a job, you are selling yourself to that interviewer कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस पोजीशन के लिए. If you want a client, you need to convince that client and sell yourself कि मैं तेरे जो भी for example funds manage करने मैं वो अच्छे करूँगा मैं. For anything you need to be a salesperson, and that sales skill also involves your confidence and public speaking ability. So वो इन events से तुम्हारी बहुत अच्छी हो सकती है. Very rightly said, Ronak. Actually, we have the qualities, but if we don't show up our qualities to people, then how someone is going to get to know about you? We have to show, yes, it's I can do this, I can do this. No one is going to coming at your home and just let you know कि हाँ मेरे को ये आता है. हमें खुद बताना पड़ेगा कि हाँ हमें ये आता है, कि किसी को पता नहीं लगने वाला. So that is why these conferences, these events are there for us, for CA students. And LinkedIn as well. Make sure to be active there as well. Yeah, so that was a very nice and satisfactory answer by all of you. So, प्रशांत, Yeah. जैसे अभी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट. हाँ, Yeah. थोड़ा सा बताओगे उस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्या है उसके अंदर, कहाँ पे है?
Definitely. So Delhi is basically not Delhi, but Nikasa is organizing this conference, which is at Hayat Centric, Janakpuri East. So पहले नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, इट इज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया. सो सारे सीए स्टूडेंट्स आते हैं, मस्त पेपर प्रेजेंटर. अब तो पेपर प्रेजेंटर्स की आउट हो गए, मतलब पेपर प्रेजेंटर्स की जो भी डेट्स थी वो ड्यू डेट्स खत्म हो गई. तो यू कैन प्रेजेंट योर पेपर्स, और उसके बाद वहाँ पे नेटवर्किंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. ऑल्सो जो आर्टिकलशिप का और बाकी मोनोटोनस वर्क है उसमें से तुम्हें एक बहुत अच्छा क्लब वाली फील आ जाती है शाम के टाइम पे बेसिकली. वो सारा रहता है. बाकी किट मिलती है अपनी, मस्त नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज. मतलब मेरे को तो ये लगता है यार सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. फेस्ट में जाओ, कॉन्फ्रेंस में जाओ, नथिंग इज बेटर देन दिस. एग्जैक्टली. और कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है? हाथ सेंट्रिक में है ना? हयात सेंट्रिक, हाथ सेंट्रिक, राइट. तो गाइस, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस. ऑडियंस में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है हमारे स्टार स्पीकर्स से, दे कैन डेफिनेटली आस्क. I just want to add what Prashant said. हाँ. Like इन चीजों के अलावा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, दैट इज आपको 15 टॉपिक जो इमर्जिंग हैं, जो इंटर के बच्चे हैं या फिर फाइनल के भी हैं, जो 15 टॉपिक वर्ल्ड क्लास इमर्जिंग टॉपिक्स हैं जैसे, तो इसमें आपको एटलीस्ट एक ब्रीफ मिलने वाला है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स में बोलने वाले हैं जो पेपर प्रेजेंटर से. 15 मिनट्स में आपको ग्लिम्स मिलने वाला है. यू लिसन टू एनी ऑफ द सेशंस. आपको जिस टॉपिक में डायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट हो, डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल में हो, इंटरनेशनल, बाकी ऑडिट में हो, ऑडिट, फॉरेंसिक में हो, फॉरेंसिक, एंड बाकी ब्लॉकचेन में भी है, सुनो, कर जाओ, उस पर रिसर्च करो एंड योर इंटरेस्ट डेवलप करो, और आगे आपका ऐसे ही इंटरेस्ट डेवलप होकर बहुत बड़ा कर सकते हो इस फील्ड में. सो लाइक ऐसा नहीं कि मतलब ओनली फन एस्पेक्ट ही नहीं, बट आपकी लाइफ बनाने की एस्पेक्ट भी बनेगी, एंड देयर यू आर आल्सो गोइंग टू मीट द पर्सन हु इज रियली इनटू इट. तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखना. मतलब उसके अलावा ग्रेट. हो सकता है तुम्हारी बात सही है, बट मतलब सही है, बढ़िया. ये सारी रिसर्च से मिलते, मतलब मेरे साथ क्या, मैं पर्सनल लेवल पे रिसर्च कर लेता हूँ, तो मेरे को तो बस फन चाहिए इन इवेंट्स. हाँ, रिसर्च अरे तो obvious है. फन तो हो गया, मतलब मैं नॉर्मली मतलब वो भी बता देता हूँ हाँ. कि क्या मिलने वाला है, बस इसलिए. नॉलेज इनसाइट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. हाँ बस, हाँ वही वो. These events are like work on everything, I believe, like on our listening skills. If we listen to the one who is speaking, on our speaking skills, we get to know that everyone has different, you know, कि हमें slow बोलना है, voice modulation कैसे करना है, where high pitch, where slow pitch, frequency कैसे करनी है. And the third, I believe, is our writing skills as well, because हमें पता लग जाता है कि presentation कैसे बनानी है. So it works on all of our skills all together. So it's like something you must attend for sure. Deepak, you can unmute yourself if you have some questions. Yes, Deepak, you can ask. Hi, all of you. Hi, Deepak. Hi, Deepak. As Trishan talked about Hayat Centric Nikasa conference, so I had registered for that. तो मेरे को एक क्वेश्चन था कि ये मेरा फर्स्ट इवेंट होने वाला है, तो 3rd and 4th सितंबर को है. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने होते हैं? मैंने लिंक्डइन पे भी पूछा था. कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है भाई, बस तुम खुद आ जाना. जब आपने पैसे भर दिए, वो सीट नहीं लाओगे तो भी हो जाएगा, कुछ नहीं लाना भाई, कुछ नहीं लेके आना, बस तब भी हो जाएगा, because बस तुम खुद आ जाना when you enter an भाई. event, there is a main desk. वहाँ पे they have whatever registrations जो आई थी उनकी जैसे sheets printed out. So the volunteers there take your basically your attendance. उसके ऊपर आपका NRO नंबर, CRO जो भी नंबर होगा आपका रजिस्ट्रेशन का, वो लिखा होगा, and then you like write your phone number, email, and you sign against it as your attendance. So Right, अगर and you will तुम्हारा उसमें also- नाम नहीं है तो you will कायदे से not be allowed in the event. So नाम का भी होगा, तुम रजिस्टर कर दिया है. So bottom line, you don't need to do anything, बस कर लो और इवेंट पे आ जाओ. Yeah, I already answered the same on LinkedIn. कोई नहीं. हाँ दीपक, आई होप योर क्वेश्चन तो इज आंसर्ड. रिसिप्ट जो मिली है उसके ऊपर एनआरओ नंबर मेंशन ही नहीं है. कोई बात नहीं. नहीं, कोई नहीं भाई, तुम्हारा नाम आपने मेंशन पेमेंट कर दी ना. ICICI इतना अच्छा है कि आपको पेमेंट तो हो गई. बस निकासा वाले अच्छे हैं भाई, निकासा वाले. एंड आई हैव वन मोर क्वेश्चन. हाँ. हाउ कैन बी वॉलंटियर द आईसी इवेंट? See, I think okay. Shall I say? Hello. या Yeah, सत्य. sure. हाँ, sure. See, देखो अभी कुछ दिन पहले हायरिंग हुई है, राइट. अभी जैसे ही सितंबर में नया इलेक्शन, नया कमेटी बनने वाला है, तो उसके बाद दोबारा इनका स्टार्ट होगा.
तो उसमें आप जरा थोड़ा लिंक्डइन पे एक्टिव रहोगे ना, या फिर डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली ट्राई, अगर मतलब अच्छा वी विल डेफिनेटली रिफर योर नेम, अगर आपको दिल से करना है हम आपका प्लीज आगे इंटीमेट कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। आप फिर अपना जो भी You उनका can also प्रोसेस join वगैरह होगा Mikasa कंप्लीट करना। WhatsApp और groups. हेलो, आयुष कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा था कि निकासा के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर अपडेट्स आते रहते हैं हाँ, जब हाँ। भी वॉलंटियर सेलेक्ट करते हैं वो, या फिर जब भी कोई इवेंट होने वाला होता है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा ऊपर। And जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। एज सच कोई हम जैसे वो मेंबर्स का होता है नॉमिनेशन वगैरह, वॉलंटियर्स तो हम सेफ ऑन लाइक अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व होते हो कमेटी वगैरह से तो ऑटोमेटिक वो हो जाता है, लाइक आई डोंट थिंक इट्स अ बिग इशू। एग्जैक्टली। Right. एनीवन एल्स फ्रॉम द ऑडियंस? Okay, thank you. Hello. यस हर्षित। Hello. हाय Am हर्षित। I audible? यस हर्षित, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Yeah. Hello रिया दीदी. Hello रौनक भैया. Hello सत्य अरे भैया. भैया भैया क्यों बोल रहे हो? बोलो। Hello प्रशांत. अच्छे से बताओ। हाँ भाई मैं तुमको छोटा ही हूँ भाई, शांति से हर्षित नहीं हम दोनों तो सेम ही एज के हैं, प्रशांत और मैं तो. हाँ रौनक को बोलो भैया। तो मुझे ना बस एक बात कहनी है कि मैंने गाजियाबाद कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तो वहाँ पर मैंने रौनक भैया और यदि दोनों को पेपर प्रेजेंट करते हुए देखा था। तो मतलब मुझे पहले से ही पेपर प्रेजेंट करने का बहुत मन है, और एंड व्हेन आई सॉ यू आई लिटरली मतलब मुझे इतना मन हुआ पेपर प्रेजेंट करने का, क्योंकि आई रियली मेरी पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक वीक पॉइंट होता है, बहुत लोगों का होता है। तो एंड आई रियली वांट टू कि वहाँ पेपर प्रेजेंट करूँ और अपने उनको इम्प्रूव करूँ अपनी स्किल्स को। लाइक अभी मैंने एमओसी के लिए भी ऑडिशन किया, अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आई रियली वांट टू इम्प्रूव एंड मतलब मैं बस यही चाहता हूँ कि मतलब मुझे कुछ इसके रिगार्डिंग हेल्प मिले। मैं आप मुझे मतलब कुछ हेल्प करें इसके रिगार्डिंग, कुछ भी अपनी टिप्स लाइक। So, Harshit, now you know your weak point. You fear public, right? So the next step is you to face it. When you know that this is the fear, then the next step is to face it, right? Now Yes. you have given the auditions for MOC, right? But Yes. you couldn't get into it. But the Yes. next step is to move. Just get to know, just ask the feedback from Rashi and Ashish that what Yes. was the thing that you was not there, and you just need to improve on it, and then again prepare it, and again just present yourself, right? So next step is this for you. Just again and again just try for it. Whatever the fear is, you have to remove it totally till the end. यस थैंक यू। वेल एक्चुअली मतलब जैसे आप बोल रहे ना, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इतना ही कॉन्फिडेंट हो जाऊँ बोलने में। बिल्कुल। हो जाओगे, अभी तो always it's a होना है। process. It's a process. हाँ, it's a process. It's a process. हर्षित मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लाइक दिस हाँ जी। इज लाइक कहीं ना कहीं हर किसी का ये चीज हुआ है। तो आई विल सजेस्ट रादर देन मतलब आप काम करो, लाइक एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक जब भी आप घर पे मिरर हो या फिर कुछ भी कर रहे हो यार, वॉक करने जा रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम। यस। तो आई थिंक मतलब आप कोई भी, जैसे अभी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, खुद से शुरू हो जाना कमेंट्री कि यार मैं विराट कोहली हूँ, या फिर मुझे दिया जा रहा है मैं विराट कोहली बन गया हूँ, मींस एटलीस्ट 2 to 3-4 मिनट्स अपने खुद से इंग्लिश में या कुछ भी, या फिर कौन से में फाइनल में इंटर में आओ? मैं इंटर में हूँ। ग्रुप पे अच्छा जो भी मतलब जैसे अभी जैसे मान लेते हैं हमारा एटीसी का चल रहा है, ठीक है, नहीं मेरा ग्रुप चैप्टर चल रहा है, मतलब जो भी चल रहा है, लाइक मतलब कुछ भी हो, कुछ भी पढ़ भी रहे हो, तो रास्ते में चल रहा हूँ, मतलब बोलते जा रहे हो, कोई दोस्त मिल गया उसको वहीं पे समझा दिया, तो लाइक कीप स्पीकिंग, बोलते रहो एंड धीरे धीरे एंड ठीक है, मतलब आपने अपने से कर लिया, आपको अपने से डर चला गया, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आईसीआई का है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। एक बार शुरुआत की दिक्कत होती है, बस एक बार शुरुआत हो जाए, 10 बंदों को अपने सामने देख ले, फिर कुछ नहीं होता, फिर ठीक है, हर बार जो चढ़ता है, जैसे हम भी परसों चढ़ेंगे तो हमें भी थोड़ा पैर शिवरिंग वगैरह होगा, बट वो ठीक हो जाता है, लाइक वहां पे कुछ मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इट्स अ प्रोसेस, तो आप शुरू करो अपने से बातें वगैरह करना, तो दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट। And one Thank thing you. you can also do, record your videos. You just take Yeah. a camera and record videos, and just notice your facial expression, listen to your voice, and that can also help you with your voice modulation and confidence as well. लाइक Also, मुझे Harshit- जो राशि दीदी ने फीडबैक दिया था वही दिया था कि लाइक आई वाज नॉट इन कांटेक्ट विद द ऑडियंस व्हेन आई वाज गिविंग द ऑडिशन, एंड ऐसा लग रहा था कि मैं जस्ट अपनी स्पीक बोल रहा हूँ। माय वॉइस मॉड्यूलेशन वाज ऑलराइट, बट आई वाज लाइक आई वाज जस्ट रीडिंग इट, मतलब मैं आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाया ऑडियंस से, तो मैं उनको एंगेज नहीं कर पाया। दैट वाज द मेन रीजन दे गिव मी फॉर नॉट सिलेक्टिंग। हर्षित एक चीज बहुत अच्छी बात है कि आप इंटर में हो भी, ठीक है, हाँ जी। इंटर में ही आप शुरुआत होगा इसमें, एटलीस्ट नहीं ग्रुप 1 क्लियर है। हाँ जी। हाँ बात है भाई, मतलब हाँ
नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आप CFL में आओगे ना, यू आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्फ्रेंसेस, जैसे ही आप एलिजिबल हो गया, पेपर प्रेजेंटेशंस वगैरह वगैरह सब भेजोगे, जैसा ऐसे का एलोकेशन होता है, क्विज होता है, तो बस एक हो, फिर आपकी लड़ी लग जाएगी, शुरू हो जाएगा, फिर लोग लेंगे भाई रुक जाओ, सब में तुम ही करोगे तो कैसा चलेगा। तो ठीक है, मतलब शुरुआत का है, तो एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड अर्ली, दैट्स वेरी गुड। Exactly. थैंक यू। Yeah, Harshit, also I would recommend you to use our platform Ants Club for improving on your communication skills, right? हम weekly GDs करते हैं यहाँ पे ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? सेशंस भी करते हैं हम, ग्रुप डिस्कशंस भी करते हैं जहाँ पे यू गेट अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसके बीच में तुम आके बोल के एंड अपनी हेसिटेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हो, राइट? और हर्षित पता क्या है, जैसे तुम ये बोल रहे हो ना, मतलब सही है, बढ़िया बोलो। एक बात ना ये मत टेंशन लेना कि भाई मैं ऑडिशन वगैरह दे रहा हूँ, रिजेक्ट हो रहा हूँ, ये सब चीजें जो है ना, यू आर फार बेटर देन जो नहीं दे रहा, जिसको कुछ नहीं करना, जो सोच रहा है। मतलब मैं बताऊं, मैंने कोई पेपर प्रेजेंट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बड़ा आलसी इंसान हूं। तो तुम कर रहे हो ना, तो बहुत बेटर है, क्योंकि तुम अपने आप को ओवरकम कर रहे हो हर चीज से। पढ़ाई के साथ टाइम निकालना, आर्टिकल से टाइम निकालना, पेपर लिखना, जाके बोलना स्टेज पे। वो स्टेज दिखता आसान है, छोटा सा, पर वो उसके सामने जब 600 650 बच्चे बैठे होते हैं ना, तो वहां पे मैं 30 बच्चों के बीच में जब मैंने बोला था ना, तब मेरे पैर कांप गए थे। तो भाई ठीक है, जितने ज्यादा दोगे ना, और सबसे ज्यादा तो रिजेक्शंस का बहुत फायदा मिलता है इन चीजों के अंदर। जितने ज्यादा में तुम रिजेक्शन से फायदा उठाओगे ना, एक बार में तुम सिलेक्ट हो गए ना, तो तुम्हें लगेगा यार मैं सिलेक्ट हो गया, अब तो मैं हो ही जाऊंगा, अब मेरे को कुछ ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, ऐसा लगता है। पर एक बार रिजेक्ट हो गया ना, तुम्हें लगेगा यार क्या कमी थी, फिर अगली बार फिर रिजेक्ट हो गया, यार 2 बार रिजेक्ट हो गया, या तीसरी बार रिजेक्ट हो गया, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा ट्रैक कि हाँ भाई इस रास्ते पे चलना, तो रिजेक्ट नहीं होगा। या थैंक यू। Exactly, guys. Very nice answer, Trishant. Very motivational. Definitely rejection से ही सीखने को मिलता है हमें। इलेक्शन से Rejections bro, rejections भी तुम्हारे दिमाग में इलेक्शंस घूमते रहता है 24 घंटे। अरे हाँ, रिजेक्शन की एक चीज और बताता हूँ, पता, जस्ट एडिंग टू दैट पॉइंट शांत वाला, मेरी लाइक आई हैव अप्लाइड फॉर द 3rd कॉन्फ्रेंस, तीसरी बारी जाके मेरी गाजियाबाद में हुई है, एंड अब ये दिल्ली मैंने चौथी डाली है। इससे पहले मैंने 2 पेपर और डाले थे फॉर डिफरेंट, 3 पेपर और डाले थे फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, बट मेरी किसी में भी नहीं हुई थी। तो आई लाइक कॉल्ड अप सत्या भाई वंस एंड आई लाइक टोल्ड हिम कि मेरी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, मैं सोच रहा हूँ अब छोड़ दूं, बिकॉज मैं टाइम लगा रहा था। ये एक्चुअली यू नीड टू इन्वेस्ट इन टाइम पे, पेपर बनाना पड़ता है प्रॉपर, वर्ड के अंदर लिखो, फिर उसको थोड़ा एडिटिंग सही करो, प्रूफ रीड करो, घर वालों से कराओ, मैं ये करा तो घर वालों से एक बार पापा पढ़ लो, देख लो, वैसी वाली चीजें करके एक्चुअली फेल्ट लाइक अ टाइम वेस्ट, कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज के लिए, आई शुड स्टडी। बट देन सत्या लाइक आस्क्ड मी कि ही टोल्ड मी कि हाँ रिजेक्शन होती है, ये बहुत पेपर आते हैं, बहुत सारे पेपर आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के पेपर आते हैं, so you need to improve your paper का level also and your video also। मेरे दोनों टाइम my videos felt बहुत जैसे constricted सा, I was just like trying to read, hi my name is Ronak Singh, मैं ये मेरा पेपर ये instead of that वो धीरे-धीरे I started voice modulation थोड़ी ऐड करनी, and मेरी गाने परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से was not at all जो मैं जितना अच्छा मैं कर सकता था, बहुत ही उस हिसाब से। सो लाइक आई अगेन नो एक बारी फिजिकली करके कि मुझे अगली बारी क्या करना है, एंड नाउ दिल्ली वाले ब्रांच का आई नो कि वीडियो कैसे बनाना था। मेरा वो वीडियो लाइक अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द बेस्ट, लाइक उसके लिए सबमिशंस के लिए वीडियोस जो मैंने अभी तक बना पाया हूँ। तो वो करके ही होता है, लाइक इसमें फर्स्ट टाइम जो मैंने किया तो जाके इट फेल्ट कि हाँ अब जाके सही एक लेवल का आया है जिसपे एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी हाई है मेरे पेपर की। So you will need to keep trying उस चीज के लिए, and it's good कि तुम इंटर के अंदर हो। Right now you can also audition for MOCs वगैरह, whereas if you start जैसे मैंने फाइनल पे किया तो तुम स्टार्टिंग में वॉलंटियर हो, फिर MOC कर रहे हो, फिर कुछ और कर रहे हो, फिर तुम अटेंड कर रहे हो, फिर तुम्हारी एक बारी पेपर प्रेजेंट होने के लिए लाइक बारी आ जाएगी, तब तक इट्स लाइक तुम्हारे 6-7-8 महीने चले गए वही करते करते। एंड एक और चीज रिजेक्शन में ना लाइक काफी कुछ, जैसे सिलेक्शन में काफी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लो अभी दिल्ली से बाहर भेजना, यूजुअली 12 लोग होते हैं, 4 सेशन 3 टॉपिक, तो 12 लोग में से 4 ही बाहर के बुलाते हैं, ठीक है, तो रेशियो कम हो गया। एक चीज ये है। दूसरा होता है कि आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, कि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, मैं लेट मी वेरी फेयर, मतलब ये पता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज आप याद रखना। बिकॉज मैं एक बात बताऊं, कि ऐसे टॉपिक्स जिसमें जैसा अभी ये वाला टॉपिक है, इसी पे इसका क्रक्स वाला टॉपिक जो मेन है उसका मैंने एक कॉन्फ्रेंस में भेजा था,
एंड वहां पे नहीं हुआ. एंड ऑब्वियसली दैट दिस जो रिसर्च पेपर है दैट आई हैव पब्लिश्ड इन अ वेरी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म एज वेल. वहां पे भी रिकॉग्निशन मिला इवन फ्रॉम द एमिनेंट पर्सनालिटीज, बट वहां पे नहीं हुआ. मींस इट्स लाइक आपको ना मतलब लूज नहीं करनी चाहिए. क्या हो गया, मतलब आपने भेजा, आपका काम खत्म, भाई तुमने बनाया. टाइम लगता है, टाइम जाता है. हमें बहुत बुरा लगता है यार, टाइम चला गया, इससे बड़े मैं क्लास ही देख लेता. बट जब ये चीज मुझे क्या पता 4-5 महीने जब मैंने फेब में एक कॉन्फ्रेंस में भेजा था ये टॉपिक, मतलब उसका क्रक्स वाला, आज वही टॉपिक मुझे कम टाइम लगा, मुझे आज से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली. वही कहीं ना जैसे एक कॉन्सेप्ट है रीड, ठीक है, हाँ, जिस पे रौनक बोल रहा है. तो लाइक मतलब किसी ना किसी टॉपिक में आपको कभी ना कभी आ ही जाएगा. तो आप कभी इस वो नहीं कहना रिजेक्शन होगा तो बाद में आपको काम आएगा कहीं ना कहीं. तो बिलीव इन योरसेल्फ और आगे जाते हैं. थैंक यू सो मच प्रिया दीदी, सत्य भैया, रौनक भैया, प्रशांत भैया. एंड यू नो थैंक यू भैया एंड रौनक भैया आपको एक बात कहनी है. आपने तो आप कह रहे हो कि आपकी सॉरी रौनक को भैया बोला, मुझे दिए नहीं. रौनक आपने जो गाजियाबाद में प्रेजेंटेशन करी थी, पेपर प्रेजेंटेशन, दैट वाज मतलब बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी. और अगर आप वो कह रहे हो कि वो आपकी बेस्ट नहीं था, तो मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड सी कि आप दिल्ली में क्या प्रेजेंट करोगे. मतलब वो आपकी एक्शन में बहुत अच्छी थी. और अगर आप इसे कह रहे हो कि दैट वाज नॉट ए बेस्ट, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी. या कि तुम्हें यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ द स्टेज. जो जितने भी बेस्ट प्रेजेंटर मैंने अभी तक 3-4 कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, जब भी मैंने देखा है जिनको बेस्ट प्रेजेंटर मिलता है, वो कभी पेपर से देख के नहीं बोल रहे होते. ठीक है, मैं पूरा टाइम आई वाज लाइक रीडिंग फ्रॉम दैट पेपर आधा टाइम, लाइक आई न्यू पॉइंट्स, बट एग्जैक्टली मुझे कई जगह देखना पड़ रहा था, नहीं तो आई वाज जस्ट फ्रोजन बीच में. तो वो मुझे खुद पे ही उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस चीज का. Whereas जो बेस्ट प्रेजेंटर होते हैं, they are usually in front of the stage. एक हाथ में जो वो लाइक रिमोट होता है स्लाइड्स आगे पीछे करने के लिए, वो करके they are basically roaming around the stage, थोड़ा आगे पीछे उधर जा रहे होते हैं. एंड उनकी प्रेजेंटेशन ना लाइक एक पावरफुल इफेक्ट होता है, एक इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे. So people are hooked, judges are hooked, and that gets them the best presenter also, and that puts them in the spotlight also कि इसमें बंदे में कॉन्फिडेंस है अच्छा खासा. So मेरा एम वो है वैसे वाला बनने का, and I'll try my best कि हाँ दिल्ली वाले के अंदर I'll do like exactly that. एम मेरा वही है, उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है अभी. Correct. Thank you so much. Raghavendra Bajaj have a question. You can mute yourself to ask. Raghavendra. Hi everyone. I am Raghavendra Bajaj. I am currently in intermediate. मैं सेंट्रल रीजन में रजिस्टर्ड हूँ. सो जैसे निकासा का अपना ई-न्यूज़लेटर निकलता है जिसमें मतलब लाइक हम लोग आर्टिकल्स या पोएम्स देते हैं, वैसे सेंट्रल रीजन का भी ऐसा कुछ न्यूज़लेटर निकलता है या फिर केवल NIRC का ही होता है? नहीं, सब रीजन्स का अपना अपना होता है. इवन ब्रांच लेवल पे होता है. आप कौन से ब्रांच के हो? मैं सेंट्रल रीजन CRO. हाँ, लेकिन कौन सा ब्रांच? भोपाल. शहर कौन सा आपका? एक्चुअली मेरा डायरेक्टली सेंट्रल रीजन से है. मैं टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है. डायरेक्ट CRO. रीजन का हेड कौन सा है? नियर बाय ब्रांच कौन सी सबसे पास की? नियर बाई कानपुर है. जैसे आप गाजियाबाद ले लो. गाजियाबाद एक बहुत बड़ा ब्रांच है. तो गाजियाबाद का ना खुद ही एक न्यूज़लेटर निकलता है, आई गेस, राइट? तो एवरी ब्रांच का निकलता है. ऐसा जरूरी नहीं कि आई गेस कानपुर का भी है. अच्छा है, मैं वही सर्च कर रहा हूं. है कानपुर मनीष यार, आई गेस कानपुर का भाई, क्योंकि कानपुर ना CRO का हेड ब्रांच है. ठीक है ना, CRO का जो हेड ऑफिस है वो कानपुर में ही है. ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ नहीं होगा. तो डेफिनेटली कानपुर ब्रांच में एक बार जाके कंफर्म करो. अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताना, मैं आपको वहाँ से लाके देखूंगा. ठीक है सर, कंटिन्यू. सर उनको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? मींस मैं काफी दूर रहता हूँ कानपुर से, तो मैं अप्रोच कैसे कर सकता हूँ? उनकी वेबसाइट हो गया, कोई उनका वेबसाइट हो गया. उनकी वेबसाइट होती है, उस पे हमेशा एक जैसे कमेटी का सेक्शन होता है यूजुअली कि कौन कौन, जैसे हमारे निकासा के अंदर भी उसमें वेबसाइट पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट कमेटी में कौन कौन है. सो यू हैव द नेम्स ऑफ ऑल, लाइक जैसे अभी सेक्रेटरी, VC, ट्रेजरर, मेंबर्स, इन सबके नाम एंड नंबर दिए होते हैं. सो यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट देम. मतलब मेरे हिसाब से they wouldn't as such mind because उनकी information is public anyways. Otherwise you can like see their name and look their names upon LinkedIn and उनसे तब वहाँ पे बात कर सकते हो. Okay, so that thank you can so be a much. good way. Okay, thank you.